we will complete what is PLC and basic programming of PLC, and I think काफी कुछ लोग आप लोग जानते हैं PLC के बारे में कैसे प्रोग्राम होता है, बट IoT पर जाने से पहले हमें PLC कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज PLC एंड बेसिक प्रोग्रामिंग, सेकंड what is IoT, and third one is how to implement it, that is the help of, basically it will be implemented with the help of Node-RED, right? Then fourth one is basically what is cloud, because of we are using cloud system for storing our data and all. And fifth one is send received data between the PLC and cloud. So how we will implement this, we'll discuss one by one, right? Am I audible with clearly to all of you? Very good. Fine. So now first one is basically PLC. What is PLC? So I will just give you a little introduction about the PLC. PLC stands for Programmable Logic Controller. We can say it is a controller which is using into the industry, means in any kind of industry we are using a PLC to automate the system that produce a goods or services in a most efficient manner possible. We can say हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें आज की डेट में, चाहे मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर लो, या आप केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करो, शुगर इंडस्ट्रीज की, मींस इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री अगर आपको उस जगह ऑटोमेशन करना है तो हमें एक कंट्रोलर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड ए पीएलसी. So I'm just give you a little introduction. Now PLC is what? It is a basically control hardware, because if I say about the PLC, it is the combination of hardware and software which is a programmable interface between field input devices and field output devices, which takes signal from field input devices, resolve it and compare with the user defined program and command the field output devices. मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कंट्रोलर क्या होता है. बेसिकली PLC हैज इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन एंड CPU. So what we do, we first connect number of sensors with the input of PLC, then download a program to its memory, then PLC processor of PLC, because of it has a CPU which is used to execute the program according to the feedback from the devices. Then after that it will update to the output devices, then according to the signal which is going to the output devices works actually. तो कहने का मतलब है इनपुट डिवाइसेस से जो भी सिग्नल आ रहा है वो मैंने इनपुट मॉड्यूल पर कनेक्ट किया, देन सीपीयू ने सारा सिग्नल प्रोसेस किया, देन फर्दर आउटपुट पे मैंने कनेक्ट कर दिया. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ये मेरा क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस को हैंडल करेगा. A PLC is a solid state device or it is an industrial computer. We can say PLC is also known as, that is called an industrial computer that perform discrete or sequential logic in a factory environment. मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि आज की डेट में हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा रिलायबल होता है. जैसे कि मैं लैपटॉप पे अभी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, चाहे i5 प्रोसेसर ले लीजिए, i3 ले लीजिए, i7, जो भी आपको यूज करना है आप करिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो लैपटॉप होता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है. इसी तरीके से हम इंडस्ट्री के लिए भी हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएलसी यूज कर रहे हैं. और पीएलसी को इसीलिए कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, और किसी भी तरह के ऑपरेशन को ये कंट्रोल कर सकता है. एंड यू आर सीइंग ए इमेज फ्रॉम माय स्क्रीन. एक मैंने सामने एक इमेज लगा रखी है, दैट इज बेसिकली ए पीएलसी. ये सीमेंस का पीएलसी है. बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं. प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर. इट इज डिजाइन्ड टू हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. I can say for any kind of processes I am using a PLC. It acts as a programmed interface between the field input element and the final control element. तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये इंटरफेसिंग कैसे कर रहा है. तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि फील्ड में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, लाइक इनपुट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, उन सभी डिवाइसेस को आपको क्या करना है, पीएलसी के इनपुट पे कनेक्ट करना है. एंड जिन डिवाइसेस को आपको कंट्रोल करना है उन सभी को आपको पीएलसी के आउटपुट पे कनेक्ट करना है, जिनको कि आप बोलते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम ट्रांसफर करना है पीएलसी में. डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम पीएलसी स्टार्ट्स टू कंट्रोल द final control element, right? The automobile sector was the first industry to develop PLC into its operation. आज की डेट में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि PLC implement कहाँ पे हुआ,
तो हम बताना चाहते हैं आपको कि एग्जैक्टली पीएलसी की स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर से हुई है। देयर एम वाज टू रिप्लेस द हार्डवेयर रिलेज टाइमर्स विद प्रोग्रामेबल एंड फ्लेक्सिबल कंट्रोलर। दैट मीन्स आज की डेट में अगर मैं पीएलसी यूज कर रहा हूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, व्हाई वी आर यूजिंग पीएलसी, बिकॉज ऑफ इट इज यूज्ड टू रिप्लेस electromechanical timers, counters, relays into the form of software. So आपको अच्छे से पता होगा कि if you are reducing hardware logic control into the software, software implementation करना बहुत आसान होता है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री में अगर मुझे IoT implement करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पीएलसी इंस्टॉलेशन के बाद पीएलसी को प्रोग्राम करना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरी पीएलसी कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी, देन उसके बाद आपको आईओटी इंप्लीमेंट करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि पीएलसी क्या होता है, थोड़ा लिटिल इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। Now go for types of PLC. If I say about the types of PLC, there are three modules basically comes into each category: compact modules, modular modules, and hybrid PLC. If I say about the compact module, compact means होता है बहुत छोटा मॉड्यूल, बहुत स्मॉल मॉड्यूल जिसका यूज करते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। Second is modular module. Modular module is what? In this module, I can extend number of input, output, and modules as per our requirement. होता क्या है इंडस्ट्री में कि जब हम फर्स्ट टाइम पीएलसी कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा सिग्नल बेसिकली हम लोग एज पर द सिग्नल अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये भी होता है कि कभी कभी हमें इनपुट आउटपुट को एक्सटेंड करने की भी जरूरत पड़ जाती है। मीन्स सपोज इफ यू आर कंट्रोलिंग 50 or 100 input outputs initially, then after that, after 1 year or 2 year, if you want to extend number of input output, so you need a modular PLC. So PLC should be a modular in design so that you would be able to extend number of input output. Now third one is hybrid PLC. Hybrid is what? कि आप कभी भी कॉम्पैक्ट भी बना सकते हैं सिस्टम को, देन उसके बाद आप मॉड्यूलर भी बना सकते हैं। मींस आप अपने सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि सामने कुछ इमेजेस आप देख पा रहे हैं, एक एलन वेल्डी का इमेज है, देन उसके बाद एक मॉड्यूलर टाइप का इमेज है, देन दूसरा एक सीमेंस का इमेज है, यानी टोटल 3 इमेजेस है जो कि अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर